Okay, so today our topic is system hacking. Okay. Screen is visible to everyone. देख रही है स्क्रीन सबको? Yes, sir. Okay. तो डेस्कटॉप सिक्योरिटी में कल मैंने बताया था कि किस तरीके से आप अपने यूजर अकाउंट पर पासवर्ड सेट कर सकते हैं. ठीक है, तो यूजर अकाउंट पर पासवर्ड सेट करना मतलब जस्ट click on the start button. Okay, then go to control panel. In a control panel you can see a lot of options over here, and here you can select the user accounts. Okay, and with the help of this option you can set a password on your user account. Right now we are logged with Jafar user account, which is a member of administrator group. Okay, and if you want to set a password on that account, then you have to select on a create a password for your account, and here you can set a password whatever you want. Okay, this is the way to set a password. Now you can see this user account is now password protected. Okay, another thing is, if you in this situation when your user account is password protected, in this situation if you want to change your password from the graphical environment, क्लासरूम में कॉल रिसीव करना और कॉल पर बात करना बैन है. ठीक है, बाहर जाकर बात कीजिए. ये रूल सिर्फ मैं ब्रेक कर सकता हूं. Okay, so in this situation, if a user account is password protected and you want to change the password from the graphical environment, this is the graphical environment, then you click on change your password. It asks the current password. Okay, and if you are not aware what is the current password, then it is almost impossible for you to change the password because you are not aware what is the current password. Got it? Even if you want to remove the password, still you can click here, but in this scenario you can see it asks the current password. Okay, and if you are not aware what is the current password, then you are not able to remove the password. So the thing is, if any user account is password protected, in this situation you are not able to change or to remove the password without having a knowledge of current password if you want to do this from the graphical environment. Okay, but the term is changed if you use the command line environment. Like if you want to use the command prompt, and if you know the command, then you can change as well as remove the password without having a knowledge of current password with the help of a command, that is net space user space user account name. क्या है user account का नाम? Jafar. In your situation, आप लोग अगर कभी किसी दूसरे मशीन में कर रहे होंगे, might be possible नाम चेंज होगा. ठीक है, so this is just a generic command, net space user account name space asterisk. Okay, start. Hit the enter button. Now you can see यहाँ पर current password नहीं पूछ रहा है, so that you can easily change or to easily remove the password. If you want to remove the password, you don't need to type anything, just hit the enter button. Again retype the password. So again I hit the enter button without typing anything, and you can see the command completed successfully. That means we are successfully remove the password. Okay, see the password has been removed. Okay, without using the current password. This is the power of command prompt. Okay, that means if you know the command, then you can change and remove the password without having a knowledge of current password. Yes, बिल्कुल. आप एक क्या आप सारी क्लासेस क्विट कर सकते हो, फीस पे कर देना बस. तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा सकते हो. काम भी करता हूं तो फोटोग्राफी बहुत बढ़िया बात है. अब फिर मुझे फोटो शूट कराना होगा, तुमको बुला लूंगा. आई एम सीरियस. ठीक है, so I hope this thing is clear, but you can only change
and remove the password if you got someone's computer in running condition in login situation. मतलब आप किसी के कंप्यूटर के पासवर्ड को बदल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं बिना करंट पासवर्ड के, लेकिन कंडीशन ये है कि उस कंडीशन में आपको जो कंप्यूटर मिला है वो लॉगिन कंडीशन में हो। ठीक है, अगर किसी का कंप्यूटर, आप बेटा साहिल क्या कर रहे हो, आप लोग आपस में बात करनी, बाहर निकल जाओ। तो फिर क्या किया जाए, मेरी गाड़ी ले जाओ। समझ लो, मैं जाना हो, चल टॉपिक पे एंड हो जाए। आपको जाना चाहते हैं आप चले जाए, मैं इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप लोगों को दे दूंगा। हम एक ही गाड़ी से आए। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक पासवर्ड लगा दिया अगेन। ओके, so basically you can change and you can remove the password if you got someone's computer in login condition. But what happens if you find someone's computer in this situation like this? Now what you can do, अगर इस कंडीशन में आपको कंप्यूटर मिलता है तब क्या करोगे, क्वेश्चन तो यहां पर आता है। लॉगिन कंडीशन में मिल जाता है तो बदल सकते हो, हटा सकते हो, बट अगर आपने किसी के कंप्यूटर को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद वो कंप्यूटर आपको इस कंडीशन में मिलता है तब क्या करोगे? तब तो नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट यहां पर नहीं खुलता। खुलता है? नहीं खुलता है ना। कमांड प्रॉम्प्ट क्या है? कमांड प्रॉम्प्ट इज अ सर्विस व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड इफ यू वांट टू यूज and if you want to access any service then you have to must log in on user account. बिना घर के अंदर जाए आप घर के अंदर रखी हुई चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं। सेम एज इफ यू वांट टू यूज कमांड प्रॉम्प्ट देन यू हैव टू लॉग इन दिस यूजर अकाउंट। अगर आप लॉग इन नहीं है तो आप पासवर्ड नहीं बदल सकते क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट नहीं खुल रहा है ना। बट कितना अच्छा हो अगर मैं आपको यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट किसी तरीके से खोलना सिखा दूं, तब कर लोगे? अगर मैं यहां पर आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना सिखा दूं तब आप इस कंप्यूटर के पासवर्ड को बदल सकते हो या हटा सकते हो? एक्टिव क्यों नहीं भाई? एक्टिव तो है, एक्टिव है तभी तो दिख रहा है। अगर एक्टिव ना होता तो दिख ही ना रहा होता। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि वो एक्टिव नहीं है। बदल सकते हो, हटा सकते हो पासवर्ड। तो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू गेट द कमांड प्रॉम्प्ट इन दिस सिचुएशन। अगर आप लॉगिन नहीं है तो कमांड प्रॉम्प्ट कैसे खोल सकते हैं यहां पर, ये अगर हमने सीख लिया और कर लिया तब हम इसका पासवर्ड बदल सकते हैं, हटा सकते हैं, इवन बहुत सारे काम कर सकते हैं। नया एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट भी बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को भी इनेबल कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट से तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अब यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। माइक्रोसॉफ्ट ने बिना लॉगिन किए हमें कोई भी चीज चलाने की परमिशन नहीं दी है, सिवाय दो चीजों के। वो दो चीजें कौन सी हैं उनके मैं नाम आपको बताता हूं। विदाउट लॉगिन यू कैन एक्सेस टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज स्टिकी की। स्टिकी की एक चीज है जिसे हम चला सकते हैं बिना लॉगिन किए। दूसरी चीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी मैनेजर। These two things we can run or we can execute without login. That means we can run, we can execute two things in this situation. This situation means without login. बिना लॉगिन किए हम ये दो चीजें चला सकते हैं, और इन दो चीजों को चलाने के लिए एक की कॉम्बिनेशन होता है, और वो की कॉम्बिनेशन है प्रेस 5 times शिफ्ट की। 5 बार शिफ्ट का बटन दबाते हैं तो स्टिकी की ओपन हो जाता है। दिखाऊं आपको, देखिए 1 2 3 4 5, मैंने 5 बार शिफ्ट का बटन दबाया, ये दो स्टिकी की को खुलकर आ गई। भाई एक ये मेन ऑपरेटिंग सिस्टम की आपके विंडोज 10 की, जिससे हमें मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है ये विंडोज 7 वाली। तो स्टिकी की खुल रही है, दिख गया। दूसरी चीज है यूटिलिटी मैनेजर। वी कैन एग्जीक्यूट द यूटिलिटी मैनेजर by using a key combination that is window plus u.
आपके कीबोर्ड में एक विंडो की बटन होता है, विंडो का बटन ऐसा दिखता है, दिस इज द विंडो की, जिसे आप स्टार्ट बटन भी कहते हैं। तो इसके साथ में जब आप यू का बटन प्रेस करते हैं तो यूटिलिटी मैनेजर कॉल हो जाता है। इसके साथ का मतलब इसको दबा के रखो और यू का बटन भी दबा दो, ठीक है। दैट मीन्स प्रेस विंडो एंड यू बटन साइमल्टेनियसली, साथ में दबाना है। लुक, विंडो प्लस यू, Make your computer easier to use. utility manager is Windows will open. read and scan this list Okay. automatically. So basically you can execute these two programs without login. बिना लॉगिन किए आप ये दो प्रोग्राम चला सकते हैं, एक स्टिकी की, दूसरा यूटिलिटी मैनेजर। कैसे स्टिकी की चलाना है, 5 बार शिफ्ट का बटन दबाना है, यूटिलिटी मैनेजर के लिए विंडो के साथ में यू का बटन दबाना, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप 5 बार शिफ्ट का बटन दबाते हैं तो एक फाइल कॉल होती है जिसका नाम होता है set.hc.exe। ये फाइल एग्जीक्यूट होती है और इस फाइल की लोकेशन पता है क्या होती है, इस फाइल की लोकेशन होती है सी ड्राइव, सी के अंदर विंडोज। जस्ट अ मिनट, आई गॉट अ कॉल। हेलो, यस, नहीं, in a C drive there's a folder that name is Windows, and in the Windows folder there's another folder that name is system32, and in a system32 there's a file exists that name is setsc.exe, which is used for the sticky key. When you press 5 times shift button, this file will be executed by your operating system. Okay, and what happened in for the utility manager, there's a file name that is utilman.exe, and the location of this utilman.exe is same as sticky. Okay, so basically when you want to use utility manager, you press window plus u, and when you press window plus u, your Windows operating system execute utilman.exe from this location only. Got it? और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट के लिए जो फाइल रिस्पॉन्सिबल होती है उसका नाम होता है cmd.exe, और जिसकी लोकेशन होती है सेम। मैं ये तीनों फाइल आप लोगों को दिखा सकता हूं, इस विंडोज 7 में भी और इस विंडोज 10 में भी, दोनों सेम ही होते हैं। तो मैं विंडोज 10 में दिखा देता हूं। सी के अंदर विंडोज के अंदर system32 के अंदर ये है sethc.exe, दिस वन दिख रही है। यूटिलिटी मैनेजर के लिए ये है utilman.exe, और कमांड प्रॉम्प्ट के लिए ये रखी है cmd.exe, ठीक है। ये मैंने विंडोज 10 में दिखाई है, सेम एज विंडोज 7 में भी होती है। क्या विंडोज 7 में भी दिखा दूं? दिखा देता हूं, बट मुझे उसके लिए लॉगिन करना पड़ेगा। सी ड्राइव, विंडोज, system32 के अंदर ये setsc.exe, ठीक है, ये utilman.exe और ये cmd.exe। ओके, सेम होता है स्ट्रक्चर। मैं वापस इसको लॉग आउट कर देता हूं, ठीक है। बट ये जो बात मैंने बताई, इस बात को जानकर भी क्या होगा, देखिए इससे क्या होगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ समहाउ किसी तरीके से मैं इस फाइल को डिलीट कर दूं या रीनेम कर दूं किसी तरीके से, फॉर एग्जांपल मैंने इस फाइल को रीनेम कर दिया किसी और नाम से, फॉर एग्जांपल मैंने इसको नाम दे दिया setsc.old.exe, ठीक है। अब अगर मैं इस कंडीशन में 5 बार शिफ्ट का बटन दबाऊंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप 5 बार शिफ्ट का बटन दबाते हो, योर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट setsc.exe फ्रॉम दिस लोकेशन, लेकिन आपने तो उसका नाम ही बदल दिया, तो अब setsc.exe तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एग्जिस्ट क्या करती है? setsc old। तो 5 बार शिफ्ट का बटन दबाने से setsc old तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, और setsc.exe है नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा। ओके, बट
जिस तरीके से मैंने इस फाइल का नाम setSC का नाम मैंने बदलकर setSC ओल्ड कर दिया, अगर मैं उसी तरीके से इस फाइल का नाम cmd.exe का नाम setSC.exe कर दूं, तब क्या होगा? जब मैं 5 बार शिफ्ट का बटन दबाऊंगा तो विंडोज सिस्टम क्या करेगा? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम सी विंडोज सिस्टम 32 के अंदर रखी हुई फाइल setSC.exe को कॉल करेगा, जो कि एक्चुअली में क्या है? cmd। तो हमारे सामने क्या ओपन हो जाएगा? cmd। और जब cmd ओपन हो जाएगा तो फिर आप बदल सकते हैं पासवर्ड, अभी थोड़ी देर पहले कमांड बताया था। बट बात यह आती है कि ये काम हम करेंगे कैसे, क्योंकि अभी तो हम लॉगिन ही नहीं है। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए हमारे पास में कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, और वो रिक्वायरमेंट्स में 3 चीजें आती हैं। पहला, लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम। Those who don't know what is live operating system, I want to tell you, live operating system is a operating system which you don't need to install on any hard disk. For example, if you have live operating system on your pen drive or on your CD drive, then you can directly insert your pen drive or CD drive and boot your computer with that device. Like आप CD से बूट कर सकते हैं या पेन ड्राइव से बूट कर सकते हैं। तो ये लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पूरा ऐसा दिखाई देगा जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्ड डिस्क में इंस्टॉल हो। ये लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम हम रखेंगे किसमें? यूएसबी बेस्ड पेन ड्राइव में। तो आपके पास में एक यूएसबी बेस्ड पेन ड्राइव होनी चाहिए। तीसरी चीज, इस लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम को यूएसबी बेस्ड पेन ड्राइव में डालने के लिए आप क्या करेंगे? एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जो बूटेबल पेन ड्राइव बनाता है, जिसका नाम है रूफुस। ये कुछ ऐसा दिखता है। आप जस्ट अपनी पेन ड्राइव लगाएंगे, यहां पर अपनी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे डिवाइसेस में, और यहां पर सिलेक्ट करेंगे लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पर हम जो लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे उसका नाम है हिरेन बूट सीडी। जिनके पास में ये हिरेन बूट सीडी है, वेरी गुड। जिनके पास में नहीं है वो इस हिरेन बूट सीडी को डाउनलोड कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। मैं लिंक बता देता हूं अभी कैसे। यू जस्ट नीड टू ओपन गूगल एंड टाइप हिरेन बूट सीडी डाउनलोड। ये पहली वेबसाइट है hirenbootcd.org। ये इसका पूरा लिंक है hirenbootcd.org/download। और यहां पर आपको ये एक लिंक दिख रहा है, ये hbctpe.pe का मतलब होता है प्री इंस्टॉल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, और आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर से मैं इसका लिंक कॉपी करके यहां पर दे रहा हूं। ठीक है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आपकी हिरेन बूट सीडी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, यूएसबी पेन ड्राइव यू कैन परचेज फ्रॉम द मार्केट। रूफुस भी आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, उसका भी लिंक मैं बता देता हूं। रूफुस डाउनलोड, ये भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है rufus.ie। ठीक है, यहां पर ये डाउनलोडिंग का लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। हो रही है, मैं इसका भी लिंक यहां पर रख देता हूं। ठीक है, इस लिंक पर आप जाएंगे, आपका रूफुस डाउनलोड हो जाएगा, ऐसा दिखता है। ठीक है, यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे अपनी वो आईएसओ फाइल जो आपने डाउनलोड की है लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम वाली, आपके सिस्टम में जहां पर भी रखी हुई है। जैसे मेरे पास में यहाँ पर ये रखी हुई है, ओपन करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। अभी स्टार्ट का बटन हाईलाइट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपने पेन ड्राइव सिलेक्ट नहीं की है। स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे, एक वार्निंग मैसेज आएगा, यस कर दीजिएगा, फिनिश हो जाएगा। जब ये ग्रीन कलर का हो जाएगा फिर उसके बाद क्लोज कर देना। अब आपकी बूटेबल पेन ड्राइव बन गई है। अब आप वो बूटेबल पेन ड्राइव किसी भी कंप्यूटर में इंसर्ट करेंगे और उस कंप्यूटर को बूट करेंगे पेन ड्राइव से, तो आपका कंप्यूटर हिरेन बूट सीडी से बूट होगा। ठीक है, मैं यही काम करने जा रहा हूं, किसमें? अपने इस वर्चुअल में। वर्चुअल के लिए आपको पेन ड्राइव बनाने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट हिरेन बूट सीडी डाउनलोड कर लेनी है। ये जैसे ही आप माउस को पॉइंटर नीचे लाएंगे ना, तो ये हाईलाइट हो जाएगा, ये दिख रहा है ना डॉक का, ये डॉक हाईलाइट हो जाएगा। और अगर आपका फुल स्क्रीन पर नहीं है तो आपको ऐसा दिखाई देगा, फिर आपको ये यहाँ पे डिवाइसेस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो अगर फुल स्क्रीन नहीं है तो डिवाइसेस पर क्लिक करना है, फुल स्क्रीन है तो माउस का पॉइंटर नीचे लाएंगे और ये डिवाइसेस पर क्लिक करेंगे। इस डिवाइसेस में ऑप्टिकल ड्राइव्स
और ऑप्टिकल ड्राइव्स में आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन चूज अ डिस्क फाइल, चूज अ डिस्क फाइल पर क्लिक करेंगे और आपके कंप्यूटर में जहां पर भी रखी हुई है, मेरे सिस्टम में डी के अंदर आईसो इमेजेस के अंदर रखी हुई है, ठीक है। बेसिकली ये मैंने क्या कर दिया, अपने वर्चुअल कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा दी या सीडी लगा दी। रियल कंप्यूटर होगा तो आपको कंप्यूटर में पेन ड्राइव या सीडी ड्राइव लगानी पड़ेगी और सिस्टम को रीस्टार्ट करते वक्त बूट मेन्यू खोलना होगा। बूट मेन्यू खोलने के लिए ऑप्शंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। किसी में F1 होता है तो किसी में F10 होता है, किसी में F9 होता है, किसी में एस्केप बटन होता है। ये रियल कंप्यूटर की बात कर रहा हूं। इन अ वर्चुअल कंप्यूटर यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू इंसर्ट योर आईएसओ इमेज इन अ डिवाइसेस, ऑप्टिकल ड्राइव्स, चूज अ डिस्क फाइल और जैसे बताया वैसे करके देन यू नीड टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। ओके, सो आई जस्ट रीस्टार्ट माय कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर बूट होगा किससे, हिरेन बूट सीडी से। यू कैन सी, गॉट इट। ये बूट हो रहा है। You need to understand the difference between virtual computer and a real computer. अगर रियल कंप्यूटर में करेंगे then you must have a real pen drive और उस रियल पेन ड्राइव में क्या होगा, हिरेन बूट सीडी होगी। कैसे होगी, रूफूस की मदद से। और कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाकर आपको उस कंप्यूटर को बूट करना पड़ेगा उस पेन ड्राइव से, उसके लिए आपको बूट मेन्यू खोलना पड़ेगा। वर्चुअल में ये सब कुछ नहीं, आपने सीधे डिवाइसेस में जाकर, ऑप्टिकल डिवाइस में जाकर आपने आईएसओ इमेज लगा दी, सिस्टम को रीस्टार्ट कर दिया और वो सिस्टम बूट होगा किससे, उस लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है। क्या हो गया, तो आपका हुआ ना, मेरा थोड़ी ना हुआ। सिखा तो मैं रहा हूँ, दिखा मैं रहा हूँ, आपका हो जाने से क्या करूं, मैं आपका सिस्टम ले लूं। ये कस्टमाइज्ड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाया है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाता। लिनक्स के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सब लाइव होते हैं। आप लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी यूज कर सकते हैं इस काम के लिए। हिरेन इज नॉट द ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लिनक्स बेस्ड कोई भी लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। हिरेन तो मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा फीचर्स मिल जाएंगे और ये विंडोज के जैसा दिखता है, इसलिए आप लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू। नहीं, रास्पबेरी पाई पहले समझो कि क्या चीज है, ठीक है। नाउ यू हैव द सेम कंप्यूटर, कंप्यूटर इज सेम बट राइट नाउ द सेम कंप्यूटर इज बूटेड विद another boot medium, that is live operating system. ओके, अब उसके बाद में क्या करना है वो तो मैं बता ही चुका हूं आप लोगों को पहले। उसके बाद में आपको पहले तो इसका नाम बदलना है, चेंज करके कुछ और कर देना और फिर उसके बाद में इसका नाम बदलकर ये कर देना। आप ये काम यूटिलमैन के साथ भी कर सकते हैं। आप यूटिलमैन का नाम बदलकर कुछ और कर देना और सीएमडी का नाम यूटिलमैन कर दो, दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हिरेन बूट सीडी में दिस पीसी ओपन किया, सी ड्राइव, विंडोज नाम का फोल्डर दिख रहा है, विंडोज के अंदर किसमें जाना है, सिस्टम 32, सिस्टम 32। In a system 32, first you need to find out the setxc.exe. This is the setxc.exe. This is the original one. हमें इसका नाम बदलना है. We need to rename it. So we just right click and click on rename. आप इसका नाम बदलकर कुछ भी कर सकते हो, इवन आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, बट वो मैं सजेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास फिर ओरिजिनल फाइल चली जाएगी, है ना।
बाद में आप जो भी चेंजेस आपने किए उसे रिवर्ट बैक कैसे करोगे। इस वजह से मैं इसका नाम, सिर्फ इसका नाम बदल रहा हूँ। नाम बदलने से क्या फायदा हुआ, बैकअप भी हो गया हमारे पास में और ओरिजिनल फाइल भी चली गई। नाम बदल दिया, सेट होल्ड कर दिया, अब ओरिजिनल setSC.exe तो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, cmd ढूंढना है। ये cmd.exe, इसका नाम बदलकर क्या कर देना है, setSC.exe। बट अगर मैंने इसका नाम setSC.exe कर दिया तो फिर cmd.exe तो खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी किया और कॉपी करके यहीं पर पेस्ट कर दिया। कर दिया पेस्ट, ये cmd है हमारे पास में। ठीक, और ये cmd की ही कॉपी है, मतलब बेसिकली ये भी cmd है। इसका नाम हमें बदलकर क्या करना है, setSC, रीनेम पर क्लिक किया, setHC.exe, तो exe तो पहले से लिखा हुआ है, setHC.exe, करेक्ट। सो नाउ दिस is the modified setSC.exe which is previously cmd.exe. okay, ये cmd.exe है लेकिन इसका नाम क्या है, setSC.exe। ये ओरिजिनल setSC.exe जिसका नाम बदला हुआ है। तो ये बेसिकली है क्या, कमांड प्रॉम्प्ट है। बस इतना सा काम करने के लिए आपको सिस्टम को बूट किया था आपने, इतना सा काम करने के लिए, जिसके लिए आपको हिरेन बोर्ड सीडी की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, क्लियर। बस अब इसको बंद कर दीजिए। रियल कंप्यूटर है तो पेन ड्राइव निकाल लीजिए और सिस्टम को नॉर्मल रीस्टार्ट करा दीजिए। अब वर्चुअल है तो वर्चुअल में हमने क्या किया, डिवाइसेस में गए, ऑप्टिकल डिवाइसेस में, और रिमूव डिस्क निकाल दिया और सिस्टम को रीस्टार्ट कर दिया। ये है सिंपल, कोई रॉकेट साइंस यूज की है मैंने नहीं, बस वेट कीजिए सिस्टम के रीस्टार्ट होने का। ठीक है, अब ये कंप्यूटर वही है, लेकिन अब ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर के अंदर लगी हार्ड डिस्क से बूट होगा, जैसे पहले हमेशा होता है, मतलब विंडोज 7 आएगा। जो था ऑपरेटिंग सिस्टम वही आएगा, 7 था तो 7 आएगा, 8 था तो 8 आएगा, 8.1 होगा तो 8.1 आएगा, 10 था तो 10 आएगा, 11 था तो 11 आएगा। सर एक बार अगर ये रीनेम कर दिया तो कभी भी यूज कर सकते हैं। हाँ, कभी भी यूज कर सकते हो, हमेशा। बेटा कुछ भी क्यों कर दोगे, कुछ भी, अगर कुछ भी करना होता निमीश जी तो फिर ये कहानी क्यों पढ़ाई थी मैंने, अगर कुछ भी करना होता तो फिर ये कहानी क्यों पढ़ाई थी। हाँ, क्योंकि सिर्फ दो ही चीजें चला सकते हैं लॉग आउट की कंडीशन में, बिना लॉगिन किए सिर्फ दो ही चीजें चला सकते हैं, कि स्टिकी की और एक यूटिलिटी मैनेजर, इसके अलावा और कुछ नहीं चला सकते। ठीक है, इसलिए ये काम किया। एनीवे, आ गया। अब विंडो के साथ में यू दबाने से तो यूटिलिटी मैनेजर खुल रहा है, लेकिन 5 बार शिफ्ट का बटन दबाने से setSC.exe फाइल कॉल होगी, लेकिन वो cmd है। 1 2 3 4 5, ये तो विंडोज 10 की, हमने विंडोज 10 के साथ में तो कुछ किया नहीं, इसलिए छोड़ दो। ये है विंडोज 7 जिससे हमारा काम है। नाम क्या है फाइल का, setSC.exe कॉल हुआ है ना, लेकिन वो setSC.exe क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट है। क्या अब इस यूजर का पासवर्ड चेंज करना या रिमूव करना आपके लिए कोई बड़ा काम है, नहीं। टाइप कीजिए नेट स्पेस यूजर अकाउंट का नाम स्पेस स्टार, एंटर। पासवर्ड चेंज करने के लिए कह रहा है ना, हटाना चाहते हो कुछ भी टाइप मत करो, बिना कुछ टाइप के एंटर कर दो। रीटाइप द पासवर्ड टू कंफर्म, फिर से बिना कुछ टाइप के एंटर कर दो, एग्जिट कर दो। हट गया पासवर्ड इसमें से, अब क्या करें, रीस्टार्ट नहीं, यूं ही एंटर कर दो। हाँ, ये लो, यूं ही एंटर कर दिया, पासवर्ड तो हट चुका है। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस, कुछ टफ है। द ओनली थिंग वी रिक्वायर्ड इज लाइव ऑपरेटिंग सिस्टम इन आवर पेन ड्राइव। ठीक है, ये विक्टिम के कंप्यूटर में होना मैंडेटरी है, राइट?
नो नो, विक्टिम के कंप्यूटर पर होना नहीं, आपके पास में पेन ड्राइव होना इंपॉर्टेंट है। विक्टिम के सिस्टम में तो आप ब्रेक करने जा रहे हो। विक्टिम के सिस्टम में कुछ भी होना जरूरी नहीं है। विक्टिम का सिस्टम पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, दैट्स इट। हमारे पास में पेन ड्राइव है, देन वी कैन चेंज एंड वी कैन रिमूव द पासवर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। That means you just need to insert your pen drive on that computer, on the victim computer, then restart that computer from your pen drive. And when you boot that computer, that means victim's computer from your pen drive, then you got a live operating system of Hirenboot CD. Then you need to go to the C Windows System 32, just rename the original setsc.exe file by using any name and rename your cmd.exe file with setsc.exe file. That's it. That's the only thing that you need to perform. Then remove your pen drive and restart your computer normally. When the login screen comes, press the 5-time shift button. Then you got a setsc.exe file, which is the modified version of cmd.exe. Then after you need to enter the command, that is net space user account name space strict, and you can simply remove the password or to change the password. That's it. Okay. Fine. कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब मैं एक काम और करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं फिर से पासवर्ड लगाने जा रहा हूं, क्योंकि अब मैं दूसरा मेथड बताने जा रहा हूं। अगेन दिस कंप्यूटर इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अभी जो मेथड सिखा दिया वो हो गया। अब दूसरा मेथड सिखाने जा रहा हूं जो इससे फास्ट है और इससे इजी है, ठीक है। लेकिन वो मेथड भी हम लोग यूज किससे करेंगे? हिरेनबूट सीडी से। तो मैं दोबारा से इस सिस्टम को बूट करने जा रहा हूं हिरेनबूट सीडी से, लेकिन अब की बार मैं ये setsc.exe वाला काम नहीं करूंगा, ठीक है। फिर से हिरेनबूट सीडी लगाया और सिस्टम को रीस्टार्ट किया। और दोबारा से बूट करके मैंने ये जो भी चेंजेस किए थे ना उनको रिवर्ट बैक भी करे दे रहा हूँ, है ना। रिवर्ट बैक जिससे मेरे सिस्टम में जो चीज जैसे थी वैसे ही हो जाए, ठीक है। तो पहले रिवर्ट बैक करूंगा, फिर उसके बाद में बताऊंगा कि दूसरा मेथड क्या होता है। ओके तो सबसे पहले मैं जो भी मैंने चेंजेस किए थे उनको रिवर्ट बैक करूंगा, फिर आपको सिखाऊंगा कि दूसरा मेथड क्या होता है, ठीक है।
रिवर्ट बैक करना बहुत आसान है। जस्ट आपको ये जो setSC.exe है इसको डिलीट कर दीजिएगा और ये जो setSC ओल्ड है इसका नाम वापस से setSC कर दीजिएगा। दैट्स इट। ठीक है, बस हो गया रिवर्ट बैक। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं दूसरा मेथड जो कि ज्यादा आसान है। इसी हिरेनबूट सिटी में आपको डेस्कटॉप पर एक फोल्डर दिखाई देगा यूटिलिटीज नाम का। जस्ट गो टू दिस फोल्डर। In a utilities folder you can see another folder that name is security. Okay, just open it. In a security folder you can see another folder that name is passwords. Okay, then go to this folder and in passwords folder you can see this option, anti password edit. Just click on that. Okay, and after that what you can do, just click on open button. Okay, when you click on the open button, now you can see all the existing users account whether they are active or not. ओपन पर क्लिक करने के बाद में आपको सारे के सारे अकाउंट दिखने लग जाएंगे, भले ही वो एक्टिव हो या ना एक्टिव हो। एनीवे आपको तो इस यूजर अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना था, आपने इस पर क्लिक किया, देन चेंज पासवर्ड। अगर पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो कुछ टाइप कर दो, और अगर हटाना चाहते हो तो बिना कुछ टाइप किए ओके कर दो। हो गया, बिना कुछ टाइप किए मैंने ओके कर दिया, मतलब पासवर्ड रिमूव कर दो। और ये करने के बाद में सेव चेंजेस पर क्लिक करना मत भूलना। सेव चेंजेस पर क्लिक कर दिया, एग्जिट कर दिया, इसे बंद कर दिया और सिस्टम में से रियल कंप्यूटर है तो पेन ड्राइव निकाल दी, वर्चुअल है तो रिमूव डिस्क, और सिस्टम को नॉर्मली रीस्टार्ट कर। पासवर्ड हट गया, वो नाम हम चेंज करने वाला काम भी नहीं। ये इजी है ना, इसीलिए बेटा इसको बाद में बताया। ये इजी है इसीलिए इसको बाद में बताया। यूजुअली मैं इजी चीजें बाद में बताता हूं, लेकिन कभी कभी ये वाला मेथड कुछ कंप्यूटर्स पर काम नहीं भी करता है फॉर द सेक ऑफ सिक्योरिटी। किसी किसी में सिक्योरिटी लगी रहती, वो वाला काम जरूर कर जाता है। जी, हमें सारे मेथड्स पता होने चाहिए। इवन कभी कभी ये वाला जो बताया है ना अभी, जिसे आप इजी कह रहे हो, ये भी कभी कभी किसी कंप्यूटर पे काम नहीं करता। इस पर भले काम कर जाए, लेकिन कभी कभी किसी कंप्यूटर्स पर काम नहीं करता है। ठीक है, इसमें तो काम कर गया, तभी तो वेलकम लिख कर आ रहा। हट गया पासवर्ड, और वो setSC वाला भी सही कर दिया मैंने। आप देखो, ये तो विंडोज 10 की है, खुले स्टिकी की, अब तो कमांड प्रॉम्प्ट नहीं खुला ना, तो वो भी मैंने सही कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तीसरा तरीका वो भी ऐसा ही है, पासवर्ड लगा देता हूं फिर से। चेक कर ले पासवर्ड लग गया है कि नहीं लगा। लग गया। तीसरा तरीका भी हिरेनबूट सिटी से। हिरेनबूट सिटी लगा दिया, सिस्टम रीस्टार्ट। हमें सारे मेथड्स मालूम होने चाहिए, कोई तो काम करेगा। डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट पर आने वाली प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स और सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। हमें जितने ज्यादा मेथड्स मालूम होंगे उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। करेक्ट।
ये तीसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, 2 हो गए। नाउ दिस इज द थर्ड वन। In a third method, what you can do? You can see this utilities folder again, and in the utilities folder, there's a folder that name is security. Security के अंदर passwords, and in this password there's a folder, there's an icon that is Windows login unlocker. Okay, ये बता दिया था। अभी ये विंडोज लॉगिन अनलॉकर ओपन हुआ। ये जैसे ही ओपन होगा आपको बता देगा कि इस कंप्यूटर में टोटल कितने यूजर अकाउंट हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी बता देगा। आपको इसका पासवर्ड ब्रेक करना है, जैसे इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, चेंज करना चाहते हैं तो इधर क्लिक करेंगे, रीसेट करना चाहते हैं तो इधर क्लिक करेंगे। तो क्या करना है अपने को, चेंज करते हैं। ये लीजिए, चेंज पासवर्ड पर क्लिक किया। क्या पासवर्ड डालना चाहते हैं? 1 2 3 4, 4 डिजिट का, ठीक है। अब ये मैं जब उधर डालूंगा 1 2 3 4 तो आप लोगों को तो दिखाई नहीं देगा, आप लोगों को तो डॉट डॉट दिखाई देगा। इसलिए रिमूव करवा लो, वो ज्यादा अच्छा है, आप लोगों को विजिबली दिखाई देगा, है ना। रिमूव मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर आप ये जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ना कि हो सकता है सर ने पहले 1 2 3 4 डाला था या क्या डाला था, इसलिए आप तो रीसेट कराओ। रीसेट हो गया और ये पासवर्ड हैज बीन रीसेट, दैट्स इट। और इसको बंद कर दो, कोई सेव वेव करने की जरूरत नहीं है, ठीक। और बस सिस्टम में से पेन ड्राइव निकालिए और सिस्टम को रिमूव रीस्टार्ट कर दीजिए। ये आप कहेंगे उससे भी ज्यादा आसान था। हाँ, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। हाँ, अब इसके बाद मैं एक मंत्र बताऊंगा, उसको पढ़कर सिस्टम पर फूंक देना और हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है ना, मंत्र नहीं होता है भाई, इतना ही आसान है, इससे ज्यादा नहीं बता सकता। इससे ज्यादा सिस्टम को तोड़ देते हैं। ये सब आपकी मर्जी है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और साइबर पुलिस को इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। कभी कभी क्या होता है, वो कहीं पर रेड करते हैं, सीज कंप्यूटर करके ले आते हैं, फिर उनको जब उस कंप्यूटर को देखना होता है तो वो खोलते हैं तो पासवर्ड लगा रहता है, वो देख ही नहीं पाते बेचारे। तो फिर उसको वो फॉरेंसिक लैब में भिजवाते हैं, उसमें महीनों लग जाते हैं। तो अभी एमपी स्टेट की साइबर सेल जो है वो ये सारी चीजें भी सीखती है मुझसे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में। हट गया पासवर्ड। अभी अगर चेंज किया होता तो वही पासवर्ड वाली स्क्रीन आती, मैं पासवर्ड डालता और आपको समझ में ना आता कि क्या पासवर्ड सर ने डाला, क्योंकि आपको 1 2 3 4 तो लिखा हुआ दिखाई नहीं देता, है ना। इसलिए पासवर्ड रिमूव कराना आप लोगों के लिए विजुअलाइजेशन के लिए ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। क्लियर? बस इतनी सी चीज, तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा। बाकी फिर हम लोग मंडे को मिलते हैं। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है क्या? आप दोनों को तो नहीं है? नो सर। नहीं, ठीक है, तो फिर मंडे कनेक्ट होते हैं। ओके, चलो, बाय बाय एवरीवन। मीनवाइल डू प्रैक्टिस, या डू प्रैक्टिस।